Hello everyone, welcome to this video on our YouTube channel Smartly by SSB Institute. Today, I would be talking to you about The Indian Polity by M. Lakshmikant. I am here to teach you some topics regarding our Indian Constitution. This series is very important for any competitive examinations including UPSC, state services examinations, banking, defense services, etc. This video is presented to you by me, Rashmita Sahu. I would like to give you a brief introduction about myself. I have been selected as Police Sub-Inspector, a Class 2 officer through MPSC examination. In 2019, I have appeared for Class 1 interview of MPSC State Services examination. So friends, before starting this series, just put on your headphones and listen carefully and note down the important topics or important points that you feel are important. Now, let us start this Indian Polity series. So, in the part 1, we are going to see the constitutional framework. The chapters which are included in this constitutional framework are historical background, making of the Constitution, salient features of the Constitution, preamble of the Constitution, Union and its territory, citizenship, fundamental rights, directive principles of the state policy, fundamental duties, and finally, amendment of the Constitution. So, today we are going to see what exactly the historical background was. Before 1947, India was divided into two main entities. 1947 के पहले इंडिया को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. पहली कैटेगरी थी द ब्रिटिश इंडिया और दूसरी कैटेगरी थी प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स वाज रूल्ड बाय प्रिंसेस अंडर सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद ये जो दो कंपोनेंट्स थे, दैट इज ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स, वो मर्ज हुए थे और एक इंडियन यूनियन बना था. ठीक है. द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस टू मेनी रेगुलेशन. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग बहुत से एक्ट्स और बहुत से रेगुलेशंस देखेंगे जो कि हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले हुए थे. ठीक है. द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स. मतलब ब्रिटिश इंडिया में कब आई थी? 1600 में आई थी. और वो कैसे आई थी? ट्रेडर्स बन के आई थी. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनको दीवानी राइट्स मिले एंड इट वाज गिवन बाय हु? शाह आलम इन 1765. शाह आलम वाज अ मुगल एम्परर और उन्होंने जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जीता था तो उन्होंने 1765 में शाह आलम ने क्या दिया था? दीवानी राइट्स दिए थे. कहाँ से कहाँ के दिए थे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, शाह आलम was the person, he was the Mughal emperor who gave the Diwani rights to the British who came to India in 1600. तो दीवानी राइट्स तीन जगह के दिए थे. That three places are quite important. Try to note it down. That are Bengal, Bihar and Orissa. Okay. Now we will see some company rules from 1773 to 1858. The first starts with the Regulating Act of 1773. The British government recognized political and administrative affairs of the company and found central administration in India. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कंपनी के पहचाने और उन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बनाया. ठीक है. और रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जस्ट पुट नोट डाउन, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. मतलब पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या हुआ, उसे फर्स्ट गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया. तो हु वाज द फर्स्ट वन? तो वारेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है. मतलब पहले सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था एंड नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे. ठीक है. तो Warren Hastings was the first person. Along with him, there were 4 members in his executive council. The third point to be noted is Governor General of Bengal was Warren Hastings. So the governor of Bombay and Madras became
सबऑर्डिनेट्स ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर्स बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स सबऑर्डिनेट बनने थे किसके, वॉरेन हेस्टिंग के. और द नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टॉब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1774 विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस. ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपको 3 चीजें याद रखनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and Supreme Court was established in 1774 with 1 Chief Justice and 3 other judges. The next act is Pitt's Act of 1784. So this act was named after the Prime Minister of Britain. He was William Pitt. William Pitt के नाम पर ये एक्ट को नाम दिया गया था पिट्स एक्ट. तो पिट्स एक्ट में क्या हुआ, कंपनी एंड कमर्शियल अफेयर्स, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी और कमर्शियल अफेयर, कमर्शियल के पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी थे, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया. ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स हैंडल करते थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करते थे. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 डबल गवर्नमेंट बन चुके थे. तो आपको कैसे याद रखना है, C starts, court of directors starts from C and commercial affairs also starts from C. So how you will remember, court of directors को commercial affairs and board of control को political affairs. Commercial affairs was handled by court of directors and political affairs was handled by board of control. ठीक. Then it placed the Indian affairs under the direct control of British government. जो भी इंडियन का काम काज होता था वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में रखा गया था. And then the company's territories in India for the first time were called the British possessions. मतलब कंपनी के जो भी टेरिटरीज थे इंडिया के अंदर उनको क्या बोलते थे, ब्रिटिश पोजेशन. And then the governor council were established in Madras and Bombay. मद्रास एंड बॉम्बे में क्या था, गवर्नर काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था. The next act is Charter Act of 1883. Sorry, Charter Act of 1833. The Governor General of Bengal was made the Governor General of India. हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो अब ये एक्ट में क्या देखेंगे हम लोग, चार्टर एक्ट में, कि द गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एंड हु वॉज द फर्स्ट पर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट पर्सन. ठीक है. And then the second point is laws made under the previous acts were now regulation. Previous act मतलब 1773 का जो एक्ट था और पिट इंडिया एक्ट जो था उसको रेगुलेशंस बोलते थे. और अभी जो आगे चल के जो न्यू लॉज बनने वाले थे उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एक्ट्स बोला जाता था. द नेक्स्ट इज कंपनी बिकेम प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई. The laws also proposed to hold open competition for selection of civil servants and Indians getting equal opportunity but was negated. तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि ओपन कंपटीशन, हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है जो यूपीएससी है, तो वहाँ पे ओपन कंपटीशन रहता था. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उन्होंने बस एक प्रपोजल रखा था कि देयर शुड बी एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स विथ इंडियंस गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. बट दिस वॉज टोटली नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर सेपरेटेड. मतलब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था तो उसमें जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों फंक्शंस को सेपरेट किया गया था. दैट वे टोटली डिफरेंट. उसके बाद अ 6 मेंबर काउंसिल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव वॉज मेड. मतलब एक 6 मेंबर्स का एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव में काउंसिल बनाया गया था. उसमें से 6 में से 4 members were appointed by the provisional government of Madras, Bombay and Agra, Bengal. तो out of 6 members, 4 were appointed by the provisional governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. तो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देखा था कि देयर वाज ओपन कंपटीशन के लिए हमने प्रपोजल रखा था इंडियंस ने. लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हो गया, it introduced a system of open competition as the basis for the recruitment of civil servants. मतलब सिविल सर्विस यहाँ पे टोटली ओपन था, सबके लिए ये ओपन था. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ, द रूल ऑफ कंपनी, मतलब जो कंपनी रूल था वो किससे रिप्लेस हुआ, रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया से रिप्लेस हुआ। द ब्रिटिश क्राउन के जो भी पावर्स थे वो किससे एक्सरसाइज होना था उनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब ब्रिटिश क्राउन के जो भी पावर्स थे अभी वो पावर्स किस में आ गए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में। ही वॉज असिस्टेड, मतलब वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, तो वो किसके साथ उनका असिस्टमेंट था, असिस्टेड इन सेंस उनके साथ और कौन लोग थे, तो देवर काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 15 मेंबर्स, उसमें मेंबर्स कितने थे, 15 मेंबर्स थे। He was vested with complete authority and control over the Indian administration through the Viceroy as his agent. The Governor General was made the Viceroy. हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल से कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और अभी हम देख रहे हैं कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was made the Viceroy of India. According to the Act of 1858, the Governor General of India was made the Viceroy of India. तो हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, तो आपको स्टैटिक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कब बनाया, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये आंसर्स याद रखने हैं। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की और एक खासियत क्या है, इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमने देखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स पॉलिटिकल अफेयर संभालता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर संभालता था। सो ये दो पूरा ड्यूअल गवर्नमेंट जो भी था दैट वाज एबॉलिश्ड इन द एक्ट ऑफ 1858। अभी नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये एक्ट में क्या हुआ, it introduced for the first time Indian representation in the institution like viceroys, executive and legislative council। मतलब पहली बार वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हुआ। 3 इंडियंस एंटर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, इसमें 3 इंडियंस ने एंट्री की थी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861 का बहुत मेजर फंक्शन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे, सेंटर एंड प्रोविंसेस में। इट प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड हैव सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेसेस। मतलब वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को तो एंट्री मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। And it accorded statutory recognition to the portfolio system. Portfolio system को एक statutory recognition दिया गया, and then initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and the Madras provinces. मतलब उन्होंने प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, कब से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। अभी हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से क्या हुआ, पहले डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, तो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस शुरू किया, और उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया, इट एनलार्जेड इट साइज। उन्होंने उसके फंक्शंस बढ़ाए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे, और उन्होंने पावर ऑफ डिस्कसिंग, मतलब बजट को डिस्कस करने का पावर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड कि पावर ऑफ डिस्कशन, मतलब जो डिस्कशन का पावर था बजट रिलेटेड, दैट वाज गिवन इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। द नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में लॉर्ड मॉर्ले कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले वॉज द वॉइसरॉय और लॉर्ड मिंटो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो 1909 के एक्ट से क्या हुआ कि साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज, इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 60। मतलब पहले 16 मेंबर्स थे, तो अभी वहाँ पे कितने हो गए, 60 मेंबर्स हुए। एंड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंटर वॉज केप्ट, मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी रखा गई थी, बट प्रोविंसेस को भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी से उसको अलाउ किया जाता था। हमने 1892 के एक्ट में देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ाया गया था, या लेकिन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में क्या हुआ था कि उसके फंक्शंस को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को भी बढ़ाया गया था। The next point is Indians were added to Viceroy and Governors Council.
मतलब 1909 के एक्ट में क्या हुआ, इंडियंस मतलब हमारे जो इंडियंस थे उनको वाइसरॉय और गवर्नर काउंसिल, वाइसरॉय काउंसिल और गवर्नर काउंसिल में जगह दी गई। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा he was the first to join the Viceroy's Executive Council. Very important point should be noted. Satyanandra Sinha was the first to join the Viceroy's Council. It introduced separate electorate for Muslims. Second point which is quite important कि Muslims के लिए एक separate electorate introduce किया गया. Separate representation of presidency corporations, chambers of commerce and university and zamindars were added. तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा गया था, द मेंबर्स वर इंक्रीज फ्रॉम 60 to 60, फंक्शंस उसके बढ़ाए गए थे. एंड द नेक्स्ट वाज इंडियंस को वाइसरॉय और गवर्नर्स काउंसिल में जगह दी गई थी. सत्येंद्रनाथ सिन्हा वाज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिए थे. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. जैसे हमने 1909 के एक्ट को नाम दिया था मॉर्ले मिंटो, वैसे ही इसका नाम है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वेर सेपरेटेड एंड डिमार्केटेड फ्रॉम दोज ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. यहाँ पे क्या हुआ था कि सेंट्रल सब्जेक्ट जो थे तो उनको सेपरेट किया गया था. एंड द स्कीम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब द स्कीम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट डायरेक्ट की जिसको बोलते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. आप लोगों को बस ये पॉइंट्स याद रखने होंगे. एंड अंडर द डायरेक्ट सिस्टम, मतलब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट वाज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. अभी रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या था, गवर्नर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और फिर यही एक्ट की वजह से क्या था हुआ था कि बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर, मतलब जैसे हमारे अभी ये है, जैसे कि हमारे पास विधानसभा भी होती है, विधान परिषद होती है स्टेट्स में, ठीक है. तो वैसे ही ये एक्ट की वजह से क्या हुआ था, बाई कैमरलिज्म सेंटर में हुआ था, मतलब 2 हाउसेस होते थे. लेजिस्लेटिव असेंबली विथ 140 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ 60 मेंबर्स. ठीक है, यहाँ पे जो बाई कैमरलिज्म हुआ था तो उससे क्या बने थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आर ऑलवेज हायर, दैट इज 140 मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के 60 मेंबर्स. देयर वर डायरेक्ट इलेक्शंस एंड द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट 3 ऑफ द 6 मेंबर्स, मतलब वाइसरॉय काउंसिल में जो 6 मेंबर्स थे तो उसमें से 3 मेंबर्स को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो थे उसमें से 3 मेंबर्स को इंडियंस रहने का इन्होंने एक्ट में परमिशन दी थी. और उन्होंने यही एक्ट से हमको हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद दिस एक्ट. सो दिस कौन सी एक्ट है ये, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी निकाल कर या तो फिर नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हो. द नेक्स्ट इज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन इट वाज इन 1927 कि वहाँ पे एक 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी कमीशन आया था और उसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. तो इट वाज टोटली, मतलब ये साइमन कमीशन में क्या थे, ऑल वेर ब्रिटिशर्स. तो इट वाज, इसीलिए क्या हुआ था, इंडियंस ने इसको बॉयकॉट किया था, मतलब उसके साथ वो शामिल नहीं हुए थे. तो साइमन कमीशन की वजह से बहुत से रिफॉर्म्स हुए थे. उन्होंने उनका रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया था. एंड देन द एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि साइमन कमीशन की वजह से मतलब वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स थे, इसलिए कोई इंडियन ना होने की वजह से इंडियंस ने उसे बॉयकॉट किया था और उसके वजह से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. ठीक है. एंड अभी आपको कम्युनल अवार्ड देखना है, उसमें है कि कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ था और उन्होंने क्या किया था, मतलब रैमसे मैकडोनल्ड जब ब्रिटेन के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे. तो कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, एक्चुअली रैमसे मैकडोनल्ड ने क्या किया था कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया था माइनॉरिटीज़ को लेकर. तो माइनॉरिटीज़ को सेपरेट रिजर्वेशन दिया था, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, एरवाड़ा जेल पूना का जो है वहाँ पे उन्होंने फास्ट किया था. फास्ट मतलब उन्होंने उपोषण किया था. उसकी वजह से क्या हुआ कि सेपरेट रिजर्वेशन देने की बजाय वहाँ पे क्या हुआ था, हिंदू डिप्रेस क्लासेस को वहाँ पे थोड़ा सा कोटा दिया गया था इलेक्शंस के उसमें. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935.
तो अभी हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर पार्ट हमने किससे लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. The act provided for the establishment of All India Federation consisting of the provinces and the princely states. वहाँ पे क्या थे, 3 लिस्ट थे. दे वेर फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. आपको बस इतना याद रखना है कि फेडरल लिस्ट में पहले 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे. तो रेसिडरी पावर्स, जो भी रेसिडरी पावर्स थे, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी थे वो सब किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था. एंड दिस एक्ट abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy. It provided for the adoption of diarchy at the center. मतलब diarchy को provinces से abolish किया और उसको center में adopt किया. It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. These provinces were Assam, Bengal, Bombay, Bihar, Madras and यूनाइटेड प्रोविंस. पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से 6 प्रोविंसेस थे, तो ये आसाम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार और मद्रास यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये सारे 6 प्रोविंसेस उसमें इंक्लूडेड थे. और द मेन पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड. मतलब ये फेडरल कोड जो है ना वो इसके वजह से एस्टैब्लिश हुआ था, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. The next last act is Indian Independence Act of 1947. तो it declared India as an independent and sovereign state. मतलब sovereign state मतलब जहाँ पे हर religion को equal दर्जा दिया गया है. It established responsible government at both center and provinces. It designated the Viceroy India and the provincial governors as the constitutional heads. मतलब इंडिया का जो Viceroy था और provincial governor जो थे उनको constitutional heads का दर्जा दिया गया था. And it assigned the functions to the Constituent Assembly and declared this dominant legislature as a sovereign body. ठीक है फ्रेंड, तो अभी आपको बस ये सारे एक्ट्स को एक बार रिवाइज करना है. आई नो द चैप्टर वॉज वेरी हैवी, मतलब लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. 2-3 बार आप इस लेक्चर को देखो सो दैट आपको खुद से याद हो जाएगा ये सब. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.